ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾ ਦੇਗੀ, ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੀ ਜਾਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੰਗੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਦਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਦਨਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਜੂ ਸੋਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨੀ ਭਰਤ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਜੈਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਪ੍ਰਿया श्रीनाथ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ। कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं मध्य प्रदेश से, जिसके आधार पर यह कहना पड़ रहा है कि शिवराज के जंगल राज में मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों के लिए एक अपराध बन चुका है। और खास तौर से अगर दलित महिला या आदिवासी महिला है तो उसके लिए शिवराज जी का मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। आप सबने 12 साल की उस सबोध बच्ची के बारे में पढ़ा होगा। रूह कांपने वाला इंसिडेंट है। सरकार की कमी, पुलिस की निष्क्रियता के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सभ्य समाज में
12 साल की एक बच्ची खून से लथपथ महाकाल की नगरी में 8 किलोमीटर तक चलती रही और मदद मांग रही थी, न्याय नहीं मांग रही थी, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र मांग रही थी, और इस सभ्य समाज ने उसको एक कपड़ा नहीं दिया। तो ये सभ्य नहीं, ये सड़ चुके समाज की निशानी है, ये पुलिस की निष्क्रियता की निशानी है। क्योंकि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पर दर परत पुलिस की निष्क्रियता की वजह से जो अपराध हुआ है उसको खोलते जा रहे हैं। जो चुप्पी शिवराज सरकार की है वो अब सब समझ में आने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले इंदौर के एक अस्पताल में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इंदौर के हमारे विधायक, इंदौर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की नेत्रियां उस बच्ची से मिली। उसकी हालत गंभीर है, वो जबरदस्त शारीरिक और मानसिक यातना और पीड़ा से जूझ रही है। उसके गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं, उसके ऑर्गन्स का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यह षड्यंत्रकारी और रहस्यमयी चुप्पी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्यों है। क्योंकि तथ्य यह सामने आ रहा है कि वो 12 साल की बच्ची, सतना की रहने वाली एक दलित परिवार की बच्ची है, जिसको लीपा पोती करके यह बताया जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की है, भिखारी है और विक्षिप्त दिमाग की है। वो सतना की रहने वाली है, दलित परिवार की बच्ची है, सतना स्कूल गई थी, घर नहीं लौटी। उसके परिवारजनों ने सतना की पुलिस में जाकर एफआईआर करने की कोशिश की, और यहां से पुलिस की लापरवाही और पुलिस के अपराधी होने का स्वांग शुरू होता है। सतना के पुलिस स्टेशन में बोल दिया गया कि आप यहां से जाइए, खुद ढूंढिए, हम एफआईआर दर्ज अभी नहीं करेंगे। 24 घंटे बर्बाद कर दिए गए। अगर सतना के पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना, शायद ये दुष्कर्म, शायद ये पाप, शायद ये अन्याय टाला जा सकता था। सतना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 24 घंटे तक उनको घुमाते रहे, परिवार वाले बेचारे ढूंढते रहे। अंततोगत्वा 24 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही कि एक बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन सतना के पुलिस अधिकारियों ने, सतना के पुलिस महकमे ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या यह वो बच्ची तो नहीं है जो गुमशुदा है सतना से। यह जानने की कोशिश नहीं हुई। आज सरकार से सवाल है, करीब 700 किलोमीटर की दूरी है सतना और उज्जैन में, 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में। यह बच्ची वहां कैसे आई? इसको अगवा किया गया, इसका अपहरण हुआ। 12 साल की बच्ची अपने आप नहीं आ सकती है। तो 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सतना की पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। उसके बाद शुरू होता है उज्जैन की पुलिस का पाप। उज्जैन की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को ही अगर खंगाल लिया होता तो 12 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की खबर मिल जाती और पता चल जाता ये बच्ची कौन है, उसकी तफ्तीश की जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 12 साल की बच्ची खून से लथपथ जब अंततोगत्वा उज्जैन की पुलिस के पास पहुंची तो वो बदहाल जरूर थी, लेकिन उसने अपने पिता का, अपने दादा का, अपना और गांव का नाम बताया, और उसके बावजूद उज्जैन की पुलिस ने उसको यूपी का बता दिया, जबकि उसकी बोली बघेलखंड की थी। उसको यूपी का बताकर उसको भिखारी घोषित कर दिया गया, उसको विक्षिप्त दिमाग का घोषित कर दिया गया। वो बच्ची जो 8 किलोमीटर पैदल चल के न्याय की गुहार लगाती रही, जिसने अपना नाम सही बताया, इस हालत में पिता का नाम बताया, दादा का नाम बताया, उसको दिमागी रूप से विक्षिप्त और भिखारी घोषित कर दिया गया, जबकि उस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी उसको किस तरह से दिमागी रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया, भिखारी घोषित किया, यह भी सवाल है। अगर आप एफआईआर पढ़िए तो बेकार की बातें उसमें लिखी। उसके पिता और दादा का नाम एक करके छाप दिया गया है। यह कह दिया गया है वो मंदिर के पास घूमकर खाना मांग रही थी, बल्कि सच्चाई है कि जब वो पहुंची उसी दिन उसके साथ दुष्कर्म हो गया था।
तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? इतने दिन बाद भी 5 दिन बीत गए, आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है। एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका काम अब हाथ जोड़ के वोट मांगना थोड़ा ही है, हेलीकॉप्टर से रैली एड्रेस करना है। कैलाश विजयवर्गीय जी इस अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन उस बच्ची की टोह लेने, उस बच्ची की खबर लेने ना मुख्यमंत्री गए, ना गृह मंत्री गए और ना कैलाश विजयवर्गीय गए, जो लोकल हैं और वहां पर पास में रहते हैं। यह बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई, उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई, उसको भिखारी और विक्षिप्त बताने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर। देश के गृह मंत्री मौन है। एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में, वो मुहूर्त और समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ। चुप है। महिला आयोग चुप है। एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं। लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है, जिसको सोचकर आपकी हाड़ कांप जाएगी।